So, hello everyone. Today we will do another topic, and that is of class 12th. Yes, class 12th physics topic, chapter number 1, electrostatics. Yes, and the topic is, as you have seen in the on the DP also, on the thumbnail also. Yes, the topic of today is nothing but electric field electric field around a charged ring, and that too uniformly charged ring. And this is our today's topic, which is a pretty important topic for your class 12th and also for JE and NEET exams. Yes, so the electrostatics chapter is electrostatics, and we will derive the expression for electric field around a uniformly charged ring or circular ring. That's the same thing. So let's draw a uniformly charged circular ring. Here we are. Here is the ring. Yes, this is its thickness. Negligible thickness, it has negligible amount of thickness. Yes, and it is, let's say, positively charged. Yes, it can be negatively charged also, but just an assumption. Yes, and lies there lies a test charge. There lies a test charge, and by convention we assume the test charge to be positive. Yes, to be positive, but that's the not मतलब कोई इसमें पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे हम इसको नेगेटिव ले, उसको पॉजिटिव लें, उसको पॉजिटिव लें, इसको नेगेटिव लें, कोई उसमें आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज फील्ड? फील्ड इज द कि अगर मान लो यहाँ पे हम कोई चीज़ रख दे, कोई चार्ज पार्टिकल रख दे, इफ यू प्लेस अ चार्ज पार्टिकल एट अ डिस्टेंस ऑफ x, that x can be anything, from a charged body, that then how much force will it apply on that particle? Yes, that's why it is a charged particle. Yes, this is a test particle. Yes, that's why the test charge or test particle. In gravitation chapter, if you have learned in gravitation class 11th, this is the same concept used there. Yes, for finding gravitational field around an object. So there we also take a test mass. Yes, a test mass. So what is the formula for electric field? You know that electric field is kq square upon r, where r is the distance between the test charge and the object. Yes, and the object. And k is the Coulomb's constant. Know that k is constant, and all that things. q जो होगा वो ये वाला होगा, that not, वो वाला q नहीं होगा. ठीक है, I hope that's clear, because electric field is F upon q. You know the formula for electric field also, you know the formula for Coulomb's law also. Yes, I hope that's why I'm dealing with this topic directly. Yes, I have picked this topic directly because this is a difficult topic for many students, although it is not that difficult. Let's say, let's move on. तो हम यहाँ पे एक चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी सिमिट्री पे बिल्कुल यहाँ पे भी ले लेते हैं एक. इसकी सिमिट्री मतलब इसके बिल्कुल ऐसे कि ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज सेम फोर्स अप्लाई करे इस पे. देखो, ध्यान समझना इस चीज़ को. ये वाला जो चार्ज होगा यहाँ पे, इसका डिस्टेंस सबसे कम होगा. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. यही स्टूडेंट फंसते हैं, उनको समझ नहीं आती कि इंटीग्रेशन कहाँ अप्लाई करना होता है.
इंटीग्रेशन अप्लाई करने की फील आ जाती है अंदर से। वो कैसे आती है, देखो ये वाला पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट ए, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इसको बिकॉज इट डिस्टेंस इज लीस्ट, बट दिस पॉइंट दैट इज बी, ये सबसे कम फोर्स अप्लाई करेगा इस पूरी बॉडी के रिस्पेक्ट में, सबसे कम फोर्स अप्लाई करेगा इस टेस्ट चार्ज पे बिकॉज इट इज फार अवे। यस, so that's why the force is not constant. The force applied by this on this is not constant throughout. Yes, is not constant throughout. Charge is constant, uniformly charged ring है, but force constant नहीं है हर जगह, force constant हर जगह नहीं है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जगह जगह पे चेंज हो रहा है। यहाँ कुछ होगा, यहाँ मान लो ए डैश पॉइंट, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और, कुछ और, कुछ और, हर जगह कुछ और है, हर जगह डिफरेंस है। तो हमें उन सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दैट्स वाई वी अप्लाई इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसी जगहों पर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। जैसे कि मान लो एक रॉड है, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी, देयर इज़ अ रॉड, और ये इस चैप्टर में भी होता है, वो मैंने ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में डाली थी। देयर इज़ अ रॉड एंड देयर इज़ अ मास स्मॉल एम एंड देयर इज़ अ रॉड कैपिटल एम मास, तो कितना फोर्स अप्लाई करेगा? सो सबसे आगे वाला पार्ट सबसे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, सबसे पीछे वाला सबसे कम, मतलब फोर्स चेंज हो रहा है, फोर्स इज वेरी। यस, फोर्स वेरी कर रहा है, दैट्स वाई वी अप्लाई इंटीग्रेशन। दिस इज द मेन फंडा ऑफ अप्लाइंग इंटीग्रेशन टू any problem. Yes, any problem which has variations, apply integration. So that's the thing. Yes, if there is an object, ये आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा आपने, इफ देयर इज अ ऑब्जेक्ट, वो हैंग कर रहा है ऊपर से, तो कितना नीचे तक जाएगा, जो स्ट्रेच हो जाता है तो कितना स्ट्रेस होगा, क्या फोर्स होगा। तो दैट्स वाई ऊपर की जो होगा, सबसे ऊपर जो होगा वो अलग करेगा, सबसे नीचे जो होगा उस पर फोर्स अलग लगेगा। दैट्स वाई वी अप्लाई इंटीग्रेशन टू इट। तो ऐसी जगह जहाँ पे चीज़ें अलग अलग होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग, तो उस पर हम लगाते हैं इंटीग्रेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इंटीग्रेशन, वाई वी अप्लाई हेयर इंटीग्रेशन। तो दिस इज डी क्यू, दिस इज ऑल्सो डी क्यू। यस, एंड दिस टू चार्जेस अप्लाई सेम फोर्स। हमने दो चार्जेस कुछ ऐसे तरीके से लिए हैं कि यहाँ पे भी कोई ऐसा एक चार्ज आएगा और यहाँ पे भी ऐसे ऐसे जाएंगे, तो कोई ऐसा एक चार्ज आएगा ज़रूर जो सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो। सो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। आई होप ये इतनी सीधी तो नहीं बनेगी, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये दो लाइनें बना दी हमने, और एक काम करते हैं, ये रेडियस ले लेते हैं इसका, बिकॉज वी नीड दिस ऑल्सो। रेडियस ये आर ले लिया हमने। ठीक, अब इस आर को भी हम वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज थ्रू डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक। यस, yes, I hope you understand this diagram very carefully. Now let's proceed to how we derive the question. Yes, so सबसे पहले थिंग जो इस चीज़ पे सबसे पहले थिंग आपको समझनी है, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि कौन से कंपोनेंट ऑफ फोर्स लगेगा और कौन सा कंपोनेंट नहीं लगेगा। व्हाट डू आई मीन इज दैट जो फोर्स जो लगेगा वो किस लाइन पे लगेगा। फोर्स इस लाइन पे लगेगा या इस लाइन पे लगेगा, बताओ। इस लाइन पे लगेगा और इस लाइन पे लगेगा। इस लाइन पे तो नहीं लगेगा फोर्स, ये जो इस पे फोर्स लगाएगा क्या इस लाइन पे लगाएगा? नो, इस लाइन पे लगाएगा। ऐसे ये इस पे जो फोर्स लगाएगा दैट दिस लाइन पे लगाएगा। दैट्स व्हाई दे हैव कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स आ जाएंगे, इंक्लाइंड कंपोनेंट्स आ जाएंगे। लेट्स से दिस इज थीटा, वैसे मैं ले नहीं रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी लेट्स से दिस इज थीटा, ये भी थीटा ही होगा क्योंकि दोनों सेम पे है ना। मैंने बताया था कि दोनों सिमिट्री पर है। सो दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। तो देखो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। इफ वी टेक आप लॉजिक भी समझ रहे होंगे ध्यान से कैसे। देखो इस फोर्स का, इस एफ फोर्स का एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा, है ना। अगर फील्ड बोलना है फील्ड भी बोल दो, फील्ड भी एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी होती है, यू नो दैट। फील्ड अगर है तो फील्ड का एक ये कंपोनेंट बनेगा, एक ये कंपोनेंट बनेगा। यस, फील्ड का एक ये कंपोनेंट बनेगा, एक ये कंपोनेंट बनेगा। लेट्स से दिस इज डी ई
डी ई बनेगा, डी क्यू चार्ज है, सो डी ई फील्ड बनेगी परपेंडिकुलर, है ना, ये परपेंडिकुलर फील्ड बनेगी, ये भी डी ई फील्ड बनेगी क्योंकि ये सेम चार्ज है, ये भी सेम है, डिस्टेंस सेम है, ये जो है सिमिट्री है, एंगल सेम है, सो ये भी डी ई बनेगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, नेगेटिव ऑफ डी ई, इसके रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव होगा, और यहाँ पे क्या, ये बनेगा डी ई पैरेलल। आप डी ई कॉस थीटा भी ले सकते हो बट उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ समझने के लिए। सो डी ई पैरेलल इसके लिए भी, और प्लस डी ई पैरेलल इसके लिए भी, सो दोनों साइड से ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, बट यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, कैंसल, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। दिस मीन्स दैट फॉर ऑल दीज, अगर मैं कोई सा भी पॉइंट लूँ, कोई सा भी चार्ज लूँ, दो चार्जेस लूँ, तो उनके वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ही फोर्स अप्लाई करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई आई टीच यू दिस फर्स्ट। यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि कौन सा कंपोनेंट का फोर्स लग रहा है। अगर आप ये वाला भी लोगे, बिल्कुल ये वाला, तब भी सिर्फ हॉरिजॉन्टल लगेगा, ये वाला लोगे तब भी सिर्फ हॉरिजॉन्टल रहेगा, सबसे ऊपर वाला लोगे तब भी सिर्फ हॉरिजॉन्टल रहेगा। दैट मीन्स हर जगह सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले रहेंगे, वर्टिकल वाले नहीं लगेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज द वेरी क्रूशियल थिंग, ठीक है, दिस इज अ वेरी क्रूशियल एंड वेरी, मतलब स्टेपिंग स्टोन है, बिल्कुल स्टेपिंग स्टोन, फर्स्ट स्टोन, फर्स्ट माइलस्टोन इज अचीव्ड। सो नाउ वी शुड डिराइव। अब हमें फोर्स पता चल गया है, डायरेक्शन पता चल गई है, हमें सब कुछ पता चल गया, अब हमें डेरिवेशन आई थिंक शुरू कर देनी चाहिए, कर देनी चाहिए, बताओ, कर देनी चाहिए। एक चीज़ और देखो, हमें क्या डिस्टेंस का भी देखना पड़ेगा, कोई डिस्टेंस भी लगेगा, जो है फील्ड का आपको फॉर्मूला पता है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। सो के तो ठीक है, के तो के ही होता है, क्यू भी हमको पता है, आर क्या होगा, आर ये होगा या ये होगा, फिर से मैंने बताया था ये हो, दिस इज एक्स डिस्टेंस, लेट्स से दिस इज ऑल्सो एक्स, ठीक है, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, बिकॉज कोई सिमेट्री वाली बात बार बार आ रही है। सो ये भी एक्स होगा और ये भी आपका क्या होगा, एक्स, ठीक है। या चलो मैं इसको एक्स नहीं मानता हूँ, नहीं तो फिर तो जो है इसको एक्स नहीं मानते हम, इसको एक्स मान लेते हैं। मैंने क्यों माना, क्योंकि इसके लिए फिर मैं अलग से डिराइव करूँगा, मुझे क्या पता कि इसका क्या डिस्टेंस है, मुझे रेडियस पता है, मुझे उसके सेंटर से उसका चार्ज का डिस्टेंस पता है, ठीक है। अब मैं ये उससे निकालूंगा बाय पाइथागोरस, ठीक है, बाय पाइथागोरस मैं निकाल लूँगा, ठीक है। मैंने ये एक्स क्यों लिया, क्योंकि हमें क्या पता होता है कि वो टेस्ट चार्ज इस सेंटर से कितना दूर है, हमें डायरेक्टली ये नहीं पता होता, डायरेक्टली हमें नहीं, हम ऐसी एक्सप्रेशन निकालते हैं जिसमें ऐसी वैल्यूज़ हम आए जो कि हमें पता हो पहले से, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूंगा तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी इसके रिस्पेक्ट में, बट मुझे तो अगर जब ये वैल्यू पता ही नहीं होगी तो मैं उसका फ़ायदा क्या, फिर उस एक्सप्रेशन का फ़ायदा। इसलिए एक्सप्रेशन को डिराइव करते समय हमें वो वेरिएबल्स लेने चाहिए जो हमें आगे क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। सो इसका क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेम फॉर दिस आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, पाइथागोरस। तो ये x और ये आपका रेडियस r, ठीक है, ये भी r होगा, ये x रेडियस r, तो ये आपका हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक है, ठीक, बिल्कुल। चलो अब हम डिराइव करने चलते हैं। सो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका जो है फॉर्मूला होता है ना, ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब चलते हैं आगे। सो नाउ आई रिमूव सम थिंग्स, ठीक है, कुछ चीज़ें जो जरूरत की नहीं थी वो मैंने हटा दी हैं। दीज आर दी की पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीवियस पेज, ठीक है, ये सारे की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये हम अब यूज़ करेंगे। फिगर मैंने मिटा दिया, हो सकता है आपने बना ली हो, सो मैंने अब उसको हटा दिया। सो डी ई पैरेलल इक्वल टू डी ई कॉस थीटा विल एड अप, डी ई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू डी ई साइन थीटा विल नॉट ऐड, ठीक है। आर जो है आपका डिस्टेंस बिटवीन द टेस्ट चार्ज एंड द डी क्यू चार्ज इज रूट अंडर एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा
देखो कॉस थीटा इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें कॉस थीटा वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, साइन थीटा तो है नहीं, कॉस थीटा है, सो वी हैव टू टेक इट into consideration. Yes, so cos theta equals to x. X is the base. If you remember, x is the base, the baseline. There is the cos theta, so there is the theta, and there is the x baseline, and this is base upon hypotenuse. Hypotenuse is this, if you remember. Yes, so that's the thing, x upon root under r square plus x square. This is cos theta. Now we will do nothing but your favorite, or for someone not favorite, the deadly one, that is integration. इंटीग्रेशन किस चीज़ का करेंगे हम? इंटीग्रेशन हम करेंगे, सिंपल सी बात है, इसका करेंगे, इसका तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। सो डीई इंटीग्रेशन, डीई व्हाट? डीई इज द टोटल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू integration of dE cos theta. Yes, because dE sin theta is away, cancel out, remove. Yes, so dE cos theta का हम करेंगे इंटीग्रेशन. So what is dE now? What is dE now? What is E now? सबसे पहले तो E बताओ, E क्या होता है? E आपका होता है के क्यू स्क्वायर अपॉन, सॉरी के मैं हमारा हर बार स्क्वायर बोल देता हूँ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. यस, सो के इज के. अब हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे बाय द वे, बट अभी फिलहाल अंदर डालते हैं फर्स्ट स्टेप. सो के क्यू इज आवर डी क्यू. आई सपोज यू नाउ गेट इट वाई डी क्यू आई एम टेकिंग. सो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर. आर इज दिस, सो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. यस, के डी क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू, देखो कॉस थीटा भी था, इसको भूलना नहीं है. सो इनटू एक्स अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है. अब देखो के बाहर आ जाएगा, ठीक है. डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा, ऑल द सम ऑफ द ऑल चार्जेस. देखो अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है आपका यूनिफॉर्म वाला. यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इज गिवन, ठीक है. वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग. दैट्स व्हाई वी डायरेक्टली सम अप दिस. बट इन जेई मेंस और एडवांस, मेनली इन एडवांस, ये ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल दैट चार्ज डेंसिटी इज नॉट द सेम. चार्ज डेंसिटी में डिपेंड अपॉन लेंथ, that is lambda, may depend upon the area, that is sigma, or may depend upon the volume, that is rho. Charge density per unit length, charge density per unit area, charge density per unit volume, कुछ भी केस हो सकता है. बट यहाँ पे हमने क्या यूनिफॉर्म के लिए कर, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना, बिकॉज वी आर डिराइविंग फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, दैट्स वाई डी क्यू बाहर आ जाएगा, ठीक है. सिंपली डी क्यू बाहर आके बन जाएगा क्यू. क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन द रिंग, ठीक है. तो ये आ गया के क्यू, ठीक. के क्यू इज आउट. नाउ 1 अपॉन, अब देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस दिस. ध्यान से देखो इस चीज़ को, ये क्या है 2, ये क्या है 1, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो ये कितना बन जाएगा 3, और ये क्या है रूट अंडर, तो 3/2 बन जाएगा. समझ में आया क्या बोला मैं? पल्ले पट रहा है कुछ? ये देखो ये 1/2 है, ये 2 है, कैंसिल. चलो इसको पहले कैंसिल करें, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस दिस. तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है. टोटल करेंगे तो कितना होगा? 1/2 प्लस 1 इज, मैथमेटिक्स करो, कैलकुलेटर निकालो, 3/2. यस, सो दिस होल बिकम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2. यस, की होल पावर 3/2. यस, और ये साथ में आपका आ गया यहाँ पे x तो मल्टीप्लाई में आपका था ही. अब देखते हैं इसका हम क्या करेंगे. तो अब इसका हम ये करेंगे, तो आप ध्यान से देखो, x क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द टेस्ट चार्ज, वो कांस्टेंट रहेगा. r इज द रेडियस. रेडियस विल ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट. बड़ा छोटा थोड़ी हो रहा है, रेडियस कांस्टेंट रहेगा.
ये वाला एक्स, ये भी तो कांस्टेंट, ये एक्स और ये एक्स सेम ही है भाई, सब कुछ यहाँ पे कांस्टेंट ही है, बस हमने क्या करा है, बस इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया है, यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन हुई नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन हुई नहीं है, बस साइन ही लगा है बस। इंटीग्रेशन तब होती जब ये क्यू यूनिफॉर्म ना होता। अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको जिसमें क्यू मैं यूनिफॉर्म नहीं लूँगा, ठीक है, चलो, इफ़ टाइम एग्जिस्ट, अगर टाइम रहेगा तो दूंगा, वरना तो कोई बात नहीं, आपकी बल्ले बल्ले। सो ये क्या बन गया, के इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन रूट, सॉरी रूट को तो नहीं आएगा, रूट को रहने दो, 3/2 की पावर ले लेंगे हम। सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, यस, होल पावर 3/2, दैट इज द डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यस, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों करा मैंने ऐसे, फिर से सुन लो, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट था, ठीक है, क्यों कांस्टेंट था, यूनिफॉर्म था, सीधा सीधा ऐड हो गया, सीधा सीधा आ गया यहाँ पे के इंटू क्यू, जैसे कि ये डी ई था वैसे ही ये क्यू के लिए भी मैंने डी क्यू के लिए ऐसे करा। एक्स कांस्टेंट है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, आर कांस्टेंट है, वो बड़ा छोटा नहीं हो रही है हमारी रिंग, के इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, एवरीथिंग इज अ कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी डोंट अप्लाई एनी काइंड ऑफ लिमिट्स देयर, ठीक है, कोई भी लिमिट नहीं। आप यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का रूल मत लगा देना कि प्लस सी करो, वो मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, हमें पता है कि प्लस सी ऐसे नहीं होगा। सो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, होल टू द पावर 3/2। मेन इंटीग्रेशन कब आता है, जब आपका क्यू वेरी कर रहा होता, इफ़ यू क्यू इज वेरिंग, यस, अगर आपका क्यू वेरिंग कर रहा होता तो के और ये सारी की सारी टर्म तो बाहर आ जाती, बट जो ये डी क्यू है, जो ये डी क्यू है, ये सिंपल सिंपल बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि आपका क्यू, मान लो आपका क्यू ऐसा है कुछ, क्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है वो, कुछ ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कुछ ऐसा है, ठीक है। सो फिर आपको डी क्यू की जगह पहले आप ये लिखते एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या चलो, हाँ चलो ऐसे ही, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, डी एक्स लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, डी एक्स लगाते, देन वी टेक इट्स इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन करते, लिमिट लगाते वगैरह वगैरह चीज़ें करते, सारी चीज़ें करते, तब आपका आंसर आता, ठीक है। सो आप कुछ क्वेश्चंस देख लेना ऐसे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस देख लेना। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, पहले सोच रहा था मैं करा देता हूँ, बट इंटीग्रेशन सीखनी है अगर आपको तो खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, signing off today, yes, thank you very much।